شہریوں کو بجٹ سے قبل زوردار جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی 3 روپے 33 پیسے یونٹ مہنگی کر دی۔ اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بجلی مہنگی کی گئی، نوٹیفکیشن جاری۔ دوسری طرف نیپرا کا صارفین پر نئے ٹیکس لگانے پر غور، ٹیکسٹائل سیکٹرز اور شوگر ملز والے بھی زد میں آئیں گے۔ بجلی چوری مہم میں ناقص کارکردگی کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ مہم کے دوران وفاق اور پنجاب میں سرد جنگ شروع ہو گئی۔ پی پی ایم سی کے جی ایم ثاقب جمال نے محکمہ انرجی پنجاب کے مراسلے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ادھر پولیس کا عدم تعاون بجلی چوری میں بڑی رکاوٹ بن گیا۔ لیسکو نے پولیس حکام کو آگاہ کر دیا۔ ایل پی جی کی درآمد پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں۔ بجٹ میں ایل پی جی امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کا امکان۔ ٹیکس لگنے سے سلنڈر کی قیمت 164 روپے تک بڑھ جائے گی۔ سٹیک ہولڈرز نے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے عید سے قبل ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ پلاسٹک بیگز پر پابندی کے لیے کارروائیاں۔ اے سی ماڈل ٹاؤن، شالیمار، رائیونڈ اور کینٹ نے متعدد مارکیٹ سے پلاسٹک بیگز قبضے میں لے لیے۔ کارروائیوں کے باوجود حکومت، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کے دعوے ناکام۔ پلاسٹک بیگز کی فروخت اور استعمال جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے سوابدیدی فنڈز میں 2 ارب کا اضافہ۔ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ محکمہ خزانہ نے نئے مالی سال کے بجٹ میں فنڈز مختص کر دیے۔ سوابدیدی فنڈ کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کسی کو بھی فنڈ دے سکتے ہیں۔ ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف بڑی مہم۔ لاہور میں 1.5 لاکھ کمرشل جائیدادیں ڈیفالٹرز۔ ڈی جی ایکسائز فیصل فرید کا روزانہ 10,000 سے زائد ڈیفالٹر پراپرٹی یونٹ سر بمہر کرنے کا حکم۔ 8 لاکھ ٹیکسیبل یونٹس نے ٹیکس ادا نہیں کیا۔ محکمہ ایکسائز 11 ماہ میں 17 ارب ٹیکس حاصل کر سکا۔ محکمہ بلدیات نے صفائی ستھرائی کے لیے 184 ارب مانگ دیے۔ آئندہ بلدیاتی الیکشن کے لیے بجٹ میں 10 ارب رکھنے کی تجویز۔ صفائی ستھرائی کا بجٹ تمام بلدیاتی اداروں کو دیا جائے گا۔ فنڈز میونسپل کمیٹی سے میٹروپولیٹن کارپوریشن تک کو دیے جائیں گے۔ واسا کو 4 ارب کی نئی مشینری خریدنے کی اجازت مل گئی۔ 25 نشیبی علاقوں میں 9 ارب 76 کروڑ سے سیوریج تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے نئے مالی سال میں دونوں اسکیموں کو شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ ایل ڈی اے بجٹ 2024-25 کی تیاری کا آغاز۔ ریونیو ٹارگٹ کو نئے مالی سال میں دگنا کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال میں وصولیوں کا ہدف 40 ارب کے قریب رکھا جائے گا۔ جرمانوں اور فیسوں کی ریکوری کو تیز کیا جائے گا۔ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں کرپشن کا انکشاف۔ محکمہ تعلیم نے اسکول سربراہان کے سامان کی خریداری پر پابندی لگا دی۔ سامان کی خریداری کے لیے 1 ماہ قبل محکمہ تعلیم کو آگاہ کرنا ہوگا۔ تفصیل بھجوانے سے قبل اسکول ہیڈ کو کونسل ممبران سے بھی منظوری لینا ہوگی۔ شہر بھر کے 1119 اسکولوں کے لیے اچھی خبر۔ اسکولوں کو 23 کروڑ 87 لاکھ روپے کا نان سیلری بجٹ جاری۔ فنڈ اسکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل۔ فنڈ اسکولوں کے ترقیاتی کاموں پر بھی خرچ ہو سکیں گے۔ کتابوں کی چھپائی 14 ارب تک پہنچ گئی۔ سفارش پر بھرتی ملازمین محکمے کے لیے بڑا بوجھ ہیں۔ ٹیکسٹ بک بورڈ، قائد اکیڈمی، ایگزامینیشن کمیشن پہلے کی طرح کام کریں گے۔ انہیں صرف ضم کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم کے تینوں اداروں کے انضمام کے لیے مذاکرات۔ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کے تعلیمی اداروں کی نجکاری نامنظور کے نعرے۔ اساتذہ نے سول سیکریٹریٹ چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ احتجاجی اساتذہ کی مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ ماڈل ٹاؤن میں عدالتوں کی منتقلی کے خلاف وکلاء پھر سے سراپا احتجاج۔ وکلاء نے پی ایم جی چوک تک ریلی نکالی۔ صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی کی زیر صدارت اجلاس کا بھی انعقاد۔ ماڈل ٹاؤن عدالتیں منتقل کرنے کا نوٹیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔
YDA का सर्विसेज हस्पताल में ग्रैंड कन्वेंशन, हस्पताल के सामने व्हाइट कोट मार्च भी किया गया। YDA ने कहा कि नई तहरीक का ऐलान कर दिया, मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स एंड ब्लड बिल्डर्स एसोसिएशन का LDA ऑफिस के बाहर एहतजाज, शहर भर की मुख्तलिफ सोसाइटी के डीलर्स की शिरकत। LDA हुकाम के खिलाफ दफातर की बंदिश पर शदीद नारेबाजी। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं, शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुंचने लगे। LDA सिटी सदर विलेज काहना काछा के 7 मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। बकरे, दुम्बे, छतरे, बैल, ऊंट मवेशी मंडी की जीनत बन गए। गंदुम 3500 रुपए मन से भी नीचे आ गई। चक्कियों पर आटा फिर भी महंगा, बदस्तूर 150 रुपए किलो तक फरोख्त। गंदुम का आटा 6000 मन फरोख्त किया जाने लगा। वजीर खुराक बिलाल यासीन का GT रोड पर वाक़े जूस प्लांट पर छापा। 4250 लीटर तैयार जूस, 3600 किलो पल्प, ममनुआ रंग और केमिकल तलफ, यूनिट बंद कर दिया। जूस यूनिट से जाली मुजरे सेहत जूस बरामद। बिलाल यासीन बोले कि मुजरे सेहत बदबूदार पल्प गंदे स्टोरेज एरिया में पाई गई। गाड़ी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट से छेड़छाड़, जाली प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अप्लाइड फॉर गैर नमूना बोगस नंबर प्लेट वाले भी रगड़े में आएंगे। टेम्परिंग, जाली और वाजे नंबर न होने पर कोई उज़र कबूल नहीं होगा, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब में खसरा केसेस में इजाफा। 24 घंटों में पंजाब में खसरा से मुतासरा एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। जाम बहक बच्चों की तादाद 27 तक पहुंच गई। महकमे सेहत के मुताबिक खसरा के 268 मुश्तबे केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 39 केसेस सामने आए। शहर में फिर से गर्मी, कड़कती धूप से पारा चढ़ गया। 38 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे में गर्मी में कमी रहेगी। लाहौर फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। शरह 110 रिकॉर्ड। जेलों की लाइब्रेरियों को रीवैम्प करने की तैयारियां। हुकूमत का लाइब्रेरीज को नई कुतुब और रसाइल देने का फैसला। ज्यादा किताबें पढ़ने वाले कैदियों को तारीफी असनाद देने की हदायत। महकमे दाखिला का जेलों में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए महकमे हायर एजुकेशन को मरासला। कैदियों के लिए बार्बर शॉप्स में सहूलियात का फुकदान। औजारों की सफाई में जरासीम कुछ, सहूलियात तसल्ली बख्श नहीं। IG जेल का तमाम जेलों में बार्बर शॉप्स बनाने का हुक्म जारी। बार्बर शॉप पर कुर्सियां असीरान की तादाद के मुताबिक होंगी। तजावजात माफिया के खिलाफ जली इंतजामिया इन एक्शन। इचरा बाजार के दाखिली रास्ते पर तजावजात का सफाया, बाजार के अंदर भी कार्रवाई। धर्मपुरा, मुगलपुरा बाजार, शालीमार लिंक रोड, बागबानपुरा बाजार, GT रोड पर भी तजावजात की भरमार। PTI को 9 जून के लिए वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न मिल सकी। पुलिस का सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाजत देने से इनकार। तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन के लिए बाकायदा अदालत में रिट दायर करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर घरेलू खवातीन की तस्वीर अपलोड करने का केस। मुलजम हमजा को 11 माह कैद, 1 लाख जुर्माने की सजा। अदालत ने कहा कि खवातीन की तस्वीर अपलोड करना नाकाबिले मुआफी है। FIA को फौरी चालान अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ फैसला महफूज। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की क्यों जरूरत पेश आई? क्या एमरजेंसी थी? जरूरत क्यों पेश आई? जस्टिस शुजात अली खान का इस्तफसार। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले कि इस नौयत की कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा नहीं। माहौलियाती इदारों का नादहिंदा कंपनियों के असासे नीलाम करने के लिए बैंकिंग अदालतों से रुजू। रोजाना नादहिंदा कंपनियों के खिलाफ इजरा केस दायर किए जा रहे हैं। बैंकिंग अदालतों ने नादहिंदा कंपनियों के असासों की फौरी नीलामी के लिए कोर्ट ऑक्शंस मुकर्रर कर दिए। लेस्को के 3 लाइन सुप्रीडेंट्स की अबूरी जमानतें खारिज। 18 ट्रांसफार्मर चोरी केस में मोहम्मद अशरफ, हुमायूं असगर और सज्जाद हुसैन को FIA ने कमरे अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। बाकी के लेस्को ऑफिसर भी पेश हुए। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने समाअत की।
वाल्टन एयरपोर्ट बंद करके कमर्शियल बुनियाद पर जमीन देने का मामला। साबिक डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तजा नैब रेडार पर आ गए। नैब लाहौर ने तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने तहकीकात के लिए 13 सवालात तैयार कर लिए। कमर्शियल बुनियाद पर जमीन देने की वजाहत तलब। अदालती डिग्री पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? 4 कंपनियों के हुक्काम के वारंट गिरफ्तारी जारी। सारिफ अदालत ने कंपनी मालिकान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया। सारिफीन ने अशिया ठीक न देने पर दावे दायर किए थे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर पंजाब का चार्ज संभाल लिया। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने बैरून मुल्क दौरे पर हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान खिदमात सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान बाहमी मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मियां नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने ब्रीफिंग दी। PP 149, 148 और 147 में तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग। CEO MCL अली अब्बास बुखारी, सिबगतुल्लाह सुल्तान, अनीस अहमद और मोहम्मद अरशद की शिरकत। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जिना अस्पताल आमद। मारूफ पंजाबी शायर तजम्मुल कलीम, सीनियर सहाफ़ी इखलाक बाजवा की आयादत। अस्पताल में जारी रीवैम्पिंग मंसूबे का भी तफसीली जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने सूबाई वज़ीर सेहत को ब्रीफिंग दी। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। ज़राअत लाइव स्टॉक के शोबे में बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू, वाइस चांसलर ज़री यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से कॉटन जैनर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। एक्साइज, हाईवे टैक्स, कॉटन के दरामदी बीज, बनोला पर टैक्स और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। महकमे औकाफ ने दाता दरबार अमूर मजहबी कमेटी ने तश्कील दे दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू नबील जावेद कमेटी के चेयरमैन होंगे। सूबाई वज़रा को एक ब्यूरोक्रेट के मातहत कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान बिलाल यासीन कमेटी के मेंबर होंगे। मेंबर पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी की पार्टी ऑफिस में खुली कचहरी। अहले इलाका के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। शुएब सिद्दीकी ने मुतल्लिका महकमों को मौका पर ही अहकामात जारी किए। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी रह गए। माल रोड पर लाहौरियों के लिए पार्किंग सहल बनाने के लिए इजलास। सदर माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट ने सदारत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मरगूब, जाहिद मीर, सुहेल जफर की शिरकत। ज़ली इंतजामिया तजावुज़ात हटाए, माल रोड के ताजरों का मुतालबा। ईद उल अजहा की तैयारियां ओरूज पर। LWMC की तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स। सोसाइटीज नुमाइंदगान जानवरों की आलाइशें, आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स पहुंचाने के पाबंद होंगे। सोसाइटी में सफाई की मुकम्मल जिम्मेदारी सोसाइटी इंतजामिया की होगी। IG पंजाब की हदायत पर एवार्ड कमेटी का इजलास। दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए जारी। लाहौर पुलिस के जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद अली को तिबी अखराजात के लिए 2 लाख रुपए जारी। जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद शब्बीर अहमद को 2 लाख रुपए दिए गए। वाल्टर में SP डॉल्फिन की ज़ेर सदारत इजलास। मवेशी मंडियों के अतराफ पेट्रोलिंग का जायजा लिया गया। शहरियों और व्यापारियों की सिक्योरिटी के हवाले से अमूर ज़ेर बहस लाए गए। अहम तजारती मराकज़, मेन शाहराहों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, SP डॉल्फिन की हदायत। इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। लाहौर में 11,58,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। बड़े अजला में मुहिम इतवार तक जारी रहेगी। लाहौर में 14,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर मुहिम का हिस्सा हैं।
मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका का LDA का दौरा। DG ताहिर फारूक ने शुरका को खुशामदीद कहा, ब्रीफिंग भी दी। इंसदाद समोग, रूफटॉप गार्डनिंग और साइकिलिंग और ग्रीनरी के फ़रोग और दीगर इक़दामात के बारे में बताया। GC यूनिवर्सिटी में प्रोविशन और पेरोल के बारे में सेशन। चेयरपर्सन उखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आगाही सेशन में कम्युनिटीज़ में दोबारा रहना के मौजू पर गुफ्तगू। प्रोफेसर डॉक्टर सलमा हसन ने सेशन की मेज़बानी की।